Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about how to find the significant figures for the addition of two numbers. Today we are going to continue the topic, as well as we are going to also find the number of significant figures for the multiplication and the division. Okay, so let's take some examples based on the addition as well as the subtraction. So for example, if you talk about the addition, what we are doing, okay, so this is the example for the addition purpose. So यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 17.11. Okay, the concept is whenever we talk about the addition of two numbers, what we have to do, first we have to look at how many least significant figures are there after the decimal. What we have to see? At first we have to see that how many least significant figures are there after the decimal. So in this case, there are two significant figures after the decimal as well as the one significant figure in the second one number. And when we look at the result, we found that there are two significant figures at the end of the number after the decimal. So the concept is, we have to take the number of significant figure after the decimal that must be equal to the least number of significant figures in the given number. So here we can say that 1 is the least significant figure in the number after the decimal. So we have to take one digit after the decimal. So what we have to do, we have to draw a line after the decimal point and remaining one significant digit. And now we are going to look at the final digit to round off the digit, previous digit. So here we are seeing that the 1 is less than 5. 1 is less than 5. So basically what we do, if the digit is less than 5, we just remove the digit and doesn't do anything with the previous digit. So the answer will be something like 17.1. 17.1 is the right answer. Now there is a contradict rule that says the result must be contained the number of least count that must be equal to the number of least count present into the number. So here we could say that least count or least significant figures are 2 and here 1, 2, 3, 4. So the least significant figures in the given numbers are 2 and in the result there are 3. So is it right or wrong? So the thing is, if there is a decimal present in the result as well as in the number, then we have to look at the how many least significant figures are present after the decimal. That is what we have to consider. And we does not have to bother about how many total significant digits are there before the decimal. Not a big deal. So just leave it as it is and that will be the perfect answer. So what's the concept? Concept is, we have to look at after the decimal how many significant figures are there in the given number, and that is what we have to carry as well as in the result. So by looking at the second number, there is only one significant figure after the decimal, so we have to carry one significant figure after the decimal without looking before how many digits are present. Okay, so these one are the rules related to the addition. Now we are going to talk about the subtraction. Addition and the subtraction follows the same rules, same criteria. For example, 12.3507 subtracted 1.23 subtract करेंगे, so we are gonna get the result, that is 7021.11. 11.1207 is the result. 11.1207. Okay. तो जैसा कि हम पहले केसेस में करते थे, हम क्या करते थे, हम देखते थे कि डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यहाँ पे हमारे डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यहाँ पे डेसिमल के बाद में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओवरऑल रिजल्ट में भी आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए.
तो क्या करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को हम करते हैं राउंड ऑफ, लास्ट फिगर को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ। अब लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे जो 2 के बाद वाला डिजिट है वो है 0, 0 is less than 5 and whenever there is a digit less than 5 we keep the digit as it is without doing anything. So the final result will be equal to 11.1. That is the fact. So what we are doing, we are following the same instruction which was followed into the addition. Is it clear to everyone? Okay, let's take another example. 13.0271 minus 1.1. We are going to get the result as 11.9271. Okay, so look at the result. In result, there is only one significant figure after the decimal, and here there are 1, 2, 3, 4 significant figures after the decimal. So what we have to do, we have to keep only and only one digit after the decimal. To carry this digit, what we have to do, another we have to look at how we could round it off. तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाली डिजिट को देखेंगे। इसके पीछे वाली डिजिट जो है वो है हमारी 2. 2 इज आल्सो लेस देन 5. अगर 2 हमारा लेस देन 5 है, डिजिट हमारा लेस देन 5 है, तो इस वाले डिजिट को एज इट इज कंसीडर, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़े आगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि सेम रूल्स फॉलो होते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि नंबर्स के अंदर डेसिमल है या नहीं। फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर दैट इज देयर एनी डेसिमल नंबर प्रेजेंट और नॉट। अगर डेसिमल नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हमें फॉलो करना है कि जितने लिस्ट काउंट होंगे, जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे नंबर में, उतने ही लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए हमारे रिजल्ट में। बट इफ देयर इज अ डेसिमल नंबर, आइदर ऑफ देम, if there is a decimal number, then we have to consider how many significant digits, how many least significant digits are after the decimal in any of the number. That least significant numbers we have to consider in the result. For this example, यहाँ पे हमारा decimal के बाद में 1, 2, 3, 4 significant digits थे और यहाँ पे 1 था, तो least significant digits कितने हमारे 1 है, तो हमें रिजल्ट के अंदर भी least significant digit 1 कंसीडर करना पड़ेगा, 1th प्लेस तक, आफ्टर डेसिमल 1th प्लेस। ओके, तो ये था हमारा एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में इजियर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डेसिमल वाला लॉजिक है वो फॉलो नहीं होता है। वहां पे कौन सा लॉजिक फॉलो होता है? वहां पे लॉजिक फॉलो होता है कि आपका जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 15.2 मल्टीप्लाई बाय 10, जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें केवल और केवल दो रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हमें देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? सेकेंड नंबर में, दैट इज 1। सो रूल नंबर 1 स्टेट्स दैट इन रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 152। 15.2 मल्टीप्लाई बाय दैट 10, दैट इज इक्वल टू 152। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिजल्ट के अंदर केवल और केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 1 significant figure must be there. 1 significant figure must be there. And another thing is that the result must be into the range, कि ये रिजल्ट जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 5 के पहले जो है वो क्या है हमारा? ऑड है। And whenever there is an odd number before the 5, what we do? We basically add 1 into that digit. So what we are going to get? We are going to get 2. Now, the result must contain only 1 significant digit. And also, result must be into the range of oral final result.
तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना पड़ेगा जो 152 के नियर बाय भी हो और जिसमें केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो। अगर हमने यहाँ पे लिया 250, दो सिग्निफिकेंट डिजिट, 260 दो, 270 दो, तो हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम 200 पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम 200 पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे 200 जो है वो नियर बाय है 152 के, एज वेल एज इसके अंदर केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 200 इज द फाइनल। जहाँ पे 2 अगर आपने कर दिया एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 152 से काफी डिफरेंस रखता है, 150 का डिफरेंस रखता है, लेकिन ऑन द अदर एंड 200 जो है वो केवल और केवल रखता है 48 का डिफरेंस रखता है। तो 48 का डिफरेंस 150 के डिफरेंस से काफी कम होता है। सो दैट इज व्हाई 200 इज मोर प्रेफरेबल आंसर इन दिस केस। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 15.2 की जगह हम मल्टीप्लाई करें 14.2, तो क्या होगा? लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन इफ वी मल्टीप्लाई 14.2 by 10. It will be give us a result as 142. Now, looking at the result, there are 3 significant figures and there are only 1 significant figure. So in result, we must have to carry only and only one sig figure. यहाँ पे आपका डेसिमल वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। जैसे कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे कि इफ देयर आर नंबर व्हिच हैज डेसिमल, देन वी लुक एट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आफ्टर द डेसिमल एंड दैट मस्ट बी कैरिड आउट इनटू द रिजल्ट, but in this case we don't have to follow that criteria. In multiplication we just have to look at that how many minimum number of significant figures are there in number, and that minimum number of significant that must be follow into the result. तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 142 और इस 142 में हमें जो रिजल्ट चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, उस सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रिजल्ट में केवल और केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारा 1 है, सेकंड वाले नंबर में 1 है। तो 142 के नियर बाय अगर हम जाते हैं तो एक तो आएगा हमारा 200 और एक अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो अगर हम 200 पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 58 का, अगर हम 100 पे जाते हैं तो डिफरेंस आता है 42 का। 42 का डिफरेंस जो है वो 58 के कंपैरिजन में कम है। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? हमारा 100 आएगा। ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? 100 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, हमें इस वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना है। 4 इज लेस देन 5. So if the digit is less than 5, then we carry the digit as it is. तो 1 को हमने as it is carry कर लिया। तो उसके बाद हमें रेंज चाहिए तो हमने 2 जीरो लगा दिए। 2 जीरो लगाने से इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज भी नहीं होंगे और हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट रेंज में भी आ जाएगा। Is it clear to everyone? कोई डाउट? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। Example is 17 multiplied by 130. If we multiply 17 by 130, it will gonna give you 2201. 2210. 2210. So the result will be 2210 by multiplying 17 with 130. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दोनों नंबर्स को, तो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स है हमारे 2, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स है हमारे 2। तो ओवरऑल रिजल्ट के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1। आफ्टर द लास्ट डिजिट द डिजिट 1 is 1. So what we have to do, we have to round off this digit 2. So 1 is less than 5. What we are going to do, we are going to keep it as it is. Then we have to take 2 zeros so that it will be into the range of the result as well as the number of significant figures will be equal to 2. Significant figures कितने हैं इसमें? 2 है और जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट 2210 की रेंज में भी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहीं पे हमारा आ रहा होता 2260, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजल्ट आ रहा होता हमारा 2260 और हमें राउंड ऑफ करना होता 2 डिजिट तक, तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, 6 को देखते हैं, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस डिजिट के अंदर +1 कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाता हमारा 2300। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन 2260 आ रहा होता और हमें रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होते तो उसका फाइनल रिजल्ट आता 2300, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था 2210, तो 1 इज लेस देन 5, तो हम उसे एज इट इज रख देंगे और 2 zeros लगा देंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारे 2 है और ओवरऑल रिजल्ट जो है वो भी हमारा पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, चाहे डेसिमल हो या नहीं हो, हमें बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के बाद हमें देखना है कि दोनों में से लीस्ट कौन सा है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है। फिर हमें देखना है फाइनल रिजल्ट की तरफ, फाइनल रिजल्ट में देखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। फिर हमें कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इनटू द गिवन नंबर। तो रिजल्ट को उसके कंपेयर करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद लास्ट वाले डिजिट को आप राउंड ऑफ कर दीजिए। लास्ट वाले डिजिट के बाद वाला जो डिजिट होगा अगर वो 5 से ग्रेटर है तो लास्ट वाले डिजिट में +1 कर दीजिए, अगर वो लेस देन 5 है तो आप उसे एज इट इज रखिए। अगर वो 5 है तो 5 है अगर आपका लास्ट डिजिट के बाद वाला डिजिट, तो उस डिजिट को देखिए कि आपका इवन है या ऑड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 2250 2250 और एक रिजल्ट आ रहा है आपका 2750, ठीक है। अब हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, तो अब देखिए 2 डिजिट तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो इस फिगर के बाद में हमारा फिगर जो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो जब भी हमारा फिगर 5 आ रहा होता है और ये वाला वैल्यू हमारा इवन है, अगर ये इवन है तो इसे एज इट इज रख दीजिए, ये वाला हो जाएगा आपका 2 डिजिट फिगर्स के लिए राउंड ऑफ। लेकिन अगर ये वाला डिजिट जो है वो आपका ऑड है, 5 आ रहा है लास्ट में, उसके पहले वाला फिगर जिसे हमें राउंड ऑफ करना है वो ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो इसमें क्या कर दीजिए आप +1 कर दीजिए, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा 28। अगर हमारा 5 आता है तो, अगर 5 से कम आता तो एज इट इज रहता, 5 से ज्यादा आता तो +1 हो जाता। लेकिन अगर 5 आ गया तो हम इसे देखेंगे, अगर ये इवन है तो एज इट इज रखेंगे, अगर ये ऑड है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ भी हो गया और सिग्निफिकेंट फिगर की रेंज में कन्वर्ट भी हो गया, डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें केवल और केवल 2 रूल ध्यान रखने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं क्वेश्चन में, उतने ही होने चाहिए आंसर में। दूसरा राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ सब 2 चीजें ध्यान रखें तो आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल वाला फैक्टर इसमें काम नहीं करता, तो मोर इजियर है हमारे लिए। मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना इज मोर इजियर एज कंपेयर्ड टू द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं अब डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं कि डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल if we divide 12.5 by 17, the result will be equal to, let me calculate for the faster response, that will be equal to 0.7352, 0.7352, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो सेम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मल्टीप्लाई में कर रहे थे वही हम डिवीजन में करेंगे, देखेंगे दोनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, डेसिमल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डेसिमल का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 है, ओवरऑल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए ओके तो अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेसिमल है तो डेसिमल के आगे वाला 0 भी कंसीडर होगा, डेसिमल के बाद वाला डिजिट भी कंसीडर होगा, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसके रेस्पेक्ट में हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.7 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप ये बचपन में सीख चुके हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखा हमने 2 डिजिट्स चाहिए 2 फिगर्स चाहिए, राउंड ऑफ कर दिया, आंसर लिख के आ गए। रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, क्वेश्चन में मिनिमम कितने हैं 2 है, आंसर सही है हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब आंसर्स आएंगे क्वेश्चंस चेक होंगे पता चलेगा रिजल्ट कितना हमारा आंसर गलत है। ऐसा क्यों हुआ,
भाई रिजल्ट आया हमारा 0.7352, डेसिमल था तो डेसिमल के पहले वाला जीरो भी कंसीडर्ड होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट में आ गया ना 0.72 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है, और क्वेश्चन में भी हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 2 थे। तो फिर गलत किससे हो गया सर? आप नहीं सिखाया था, हम तो करके आए, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखना है। कैसे? कि ये जो जीरो है, ये जीरो केवल कन्वेंशन के लिए है, इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए है। यहाँ पे जो जीरो हमने लगाया है वो इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए है, न कि हमें इसे कंसीडर करने की जरूरत है। तो इस जीरो को आप भूल जाइए, इस रिजल्ट को कुछ इस तरह से लिखिए 0.7352। अब देखिए, अब हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थे? 2 चाहिए थे। तो अब आप लाइन ड्रॉ कीजिए 2 के बाद में, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पे आपका ओड नंबर है, क्या करेंगे? +1 कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा? 0.7। दिस वन इज द राइट आंसर, न कि ये वाला। हेस में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हेस में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के पहले जीरो जो है वो कन्वेंशन के लिए लगाया जाता है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड। हाँ, ये मानते हैं कि जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के पहले और बाद वाले जितने भी जीरोस होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ये जो जीरो लगाई है हमने कन्वेंशन के लिए लगाया है, ठीक है। एक्चुअल में इसका रिजल्ट कितना आ रहा था? 0.7352 आ रहा था। तो हमें रिजल्ट में कितने चाहिए थे? 2 नंबर चाहिए थे। 2 के बाद लाइन ड्रॉ करी, करा। एक और चीज, मान लीजिए आपको ये तो पता है कि हाँ भाई 0.74 आंसर आ रहा है और हमने सही करा है, लेकिन आप गलती से करके आ गए क्या? इस डेसिमल को हाईलाइट। आपने क्या कर दिया? किसान ने बताया था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है, जीरो को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन इस जीरो को हम कन्वेंशन के बेसिस पे डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम आंसर ये छाप के आ गए। फिर देखा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जैसे ही डेसिमल लग गया ये भी किस में कंसीडर हो जाएगा? आपका सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर हो जाएगा। और जब ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के रिजल्ट में हमारे पास कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। लेकिन हमें कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे। ऐसा गलत हो गया। तो इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है, ना तो डेसिमल के पहले जीरो लगाना है, ना ही इस डेसिमल के पहले के जीरो को कंसीडर करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। 2 डिजिट्स चाहिए, 2 फिगर्स चाहिए, लाइन ड्रॉ करो, राउंड ऑफ करो, डेसिमल लगाओ, आंसर लिख दो, बॉक्स बना दो, छोड़ दो। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। जीरो वगैरह मेंशन करने की, कन्वेंशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का। देखिए एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, नॉट अ बिग डील। फॉर एग्जांपल, if you divide 1000 by 20, if you divide 1000 by 20, what we are going to get? We are going to get 50 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, ओवरऑल रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 1। क्या हमारे रिजल्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है? जी हाँ। ऑल द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट having decimal number will be considered as a non-significant figure। जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता है तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा हमारा? केवल 1 है। क्वेश्चन में भी कितना है? 1 1, रिजल्ट में भी कितना है? 1। आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1001 डिवाइडेड बाय 20, अब क्या होता है? It's a little bit tricky. Let's see what is going to happen. अगर क्वेश्चन हमारा आ जाता है 1001 divided by 20, then we are going to get the result as 50.05. Now, in the question there are significant figures as 1 2 3 4 1, and in result there are 1 2 3 4 significant figures. तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे? 1 है। तो रिजल्ट में भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, पीछे के दोनों को गायब कर दो, 50.0 आ गया। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी नहीं है, गलत। ये भी गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा दिया यहाँ पे? डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाते ही ये वाला जीरो भी क्या कंसीडर हो जाएगा? आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2 हो गए। चाहिए कितने थे? 1। गलत हो गए। तो क्या करें सर? 50 लिख के छोड़ दो।
डेसिमल लगाने की जरूरत ही नहीं है, 50 लिख के छोड़ दो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, कितने चाहिए थे 1 चाहिए थे, तो चाहे आप 1000 को डिवाइड करो 20 से तब भी आपका 50 आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में, और चाहे आप 1001 को डिवाइड करो 20 से तब भी आपका रिजल्ट आएगा फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर 50। हाँ, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 50.05, बट हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो वहां पे रिजल्ट हो जाएगा आपका 50। Is it clear to everyone? Let's see another example based on this the same problem, that is, what if we divide 1001 by 21? Now that's interesting. Why? Because there are not only two significant figures are there. There are two significant figures. Not only one significant figure is there. There are two significant figures in the quotient, minimum number of significant figures. So the answer will be something like if we divide 1001 by 21, we are going to get 47.6666. 47.6666. Okay, cool. In this question, what we are going to have only two numbers as a significant. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट में भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है, तो हमें कितने रखना है, how many digits we have to carry, only and only 2 digits, so 4 and 7. डेसिमल आ रहा है, डेसिमल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। What about this one? इसे राउंड ऑफ भी तो करना पड़ेगा, फाइनल डिजिट है, इसके बाद में हमारा 00 तो है नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपका, इसके बाद वाला फिगर 6 is greater than 5 and 6 is greater than 5, so what we are going to get, +1 into the last digit, that will be equal to 0. That is the exact answer. That is the exact answer for the given problem. So this is what all about the significant figures into the subtraction, addition, multiplication and the division. Basic, we have to carry 3 rules in the addition and subtraction, and basically we have to carry 2 rules for the multiplication and the division. We don't have to bother about the decimal into the multiplication and the division, but we have to consider that one into the addition and the subtraction. Thank you very much. If you have any doubt, just ping me.